सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम लोग वापस, तुम लोग देख रहे हो डीएवी सन, और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डीएवी का क्लास 7th का, ये नोट करना, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 एसएसटी का हिस्ट्री, जो कि है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, इस वीडियो के 2 पार्ट्स आएंगे। तो आज पार्ट 1, ये वाली वीडियो में पार्ट 1 है। तो इसमें सिर्फ हम यहाँ तक ट्रिपाटाइट स्ट्रगल तक ही पढ़ेंगे, बाकी राजपूत और पूरा गवर्नेंस वगैरह हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Harshvardhan was the last great ruler of the ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to miserable economic condition and lack of proper administration by his weak successors. अब इसमें बताया गया है कि हर्षवर्धन, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हर्षवर्धन ही था लास्ट रूलर एंशियंट इंडिया का उस टाइम पर, जब पूरा किंगडम मतलब एक तरह पावरफुल था। पर जब उसकी डेथ हुई तो बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशंस में लैक हो गया, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, क्योंकि उसके जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, वो ज़्यादा संभाल नहीं पाए। तो होल एम्पायर वॉज डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी पार्ट्स, मतलब पूरा जो उसका एम्पायर था इंडिया उस टाइम का, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। अब this was a period of political instability in North India. 3 powerful kingdoms arose between 750 to 1000 CE out of the ruins of Harsha's empire, and hence this period is known as the Age of 3 Empires. The Rashtrakutas took over the control in the northern part of the Deccan, the Palas in the eastern India, Bengal and Bihar region, and the Pratihara in Avanti, southern Rajasthan and Gujarat. The 3 main kingdoms, though continuously engaged in the wars, were successful in providing stable administration which helped in the progress of art and literature. Let us study them one by one. तो अब इसमें क्या बताया है, जब हर्षवर्धन की डेथ होगी तो पूरा मतलब डिसइंटीग्रेट हो गया था इंडिया। तो उसके बाद 750 CE से लेकर 1000 CE तक जो वो डिसइंटीग्रेटेड इंडिया था, उसमें से 3 मेन एम्पायर्स निकले, 3 पावरफुल एम्पायर्स नॉर्थ में, मतलब तब राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास। एज और इसे इसीलिए 750 CE से लेकर 1000 CE तक एज ऑफ 3 एम्पायर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो अब ये यहाँ पे जगह ही बताई गई है ना, जैसे राष्ट्रकूटास टुक कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डिकेन राष्ट्रकूटास, पालास इन ईस्टर्न इंडिया एंड प्रतिहारास इन गुजरात एंड अवंती। ये तुम्हारा मैप स्किल्स में कई बार आ जाता है पेपरों में, तो ये याद रखना। और तो इसमें बस यही 750 से लेकर 1000 तक और कौन कौन से मेन किंगडम अरोज करे थे। अब हम लोग इनके बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है आपका मेन Rashtrakutas. The Rashtrakutas established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. They became the masters of large area of the present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. Their empire acted as a bridge between North and South India. Dantidurg is considered to be the real founder of Rashtrakuta empire. Govinda III and Amogvarsha were the well-known Rashtrakuta kings. The Rashtrakutas were great warriors, art lovers and scholars. They took up titles like Chakravarti, Maharaja Dhiraj and Parambhatak. They maintained huge armies and encouraged trade for the prosperity of the people. Rashtrakutas followed Jainism but also patronized Buddhism, Hindus and Muslims. Rashtrakutas rulers were great patrons of art and learning. Their rule saw the flourishing of region literature. Rock cut temples of Ellora belonging to Hindu, Buddhist and Jain sects are a proof of religious tolerance of Rashtrakutas. King Amogvarsha himself was a great lover of Sanskrit. He wrote Kaveri Gamarga, one of the earliest works in Kannada poetry. By the end of the 10th century, the Chalukyas crushed the power of Rashtrakutas and took over the control of their kingdom. अब देखो राष्ट्रकूटास कब फाउंड हुआ था, 753 CE में। अब देखो ये जो जितनी भी जगह बता रखी है ना, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये तुम्हें मैप में करनी है, ये आ सकती है मैप में। अब इधर लिखा गया है कि
अब देखो ये लाइन भी याद रखना, देयर एम्पायर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जो यहाँ पे एक ना क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट आर द व्हाई इज राष्ट्रकूटास एम्पायर इंपॉर्टेंट, मतलब ये व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो इसमें ये ज़रूर आता है, एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वो बीच में जैसे कर्नाटका में आ गया, बिहार में आ गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स में भी था ना इनका राज, तो इसलिए वो दोनों के बीच में ब्रिज थे। अब किसने फाउंडेशन करी, इसकी फाउंडेशन कह रहा हूँ, कौन था इसका फाउंडर राष्ट्रकूटास एम्पायर का? दांती दुर्ग। दांती दुर्ग इज द कंसीडर टू बी द रियल फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास एम्पायर। अगर अब मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरे ख्याल से जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पिछले साल ही 6th करी है, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दांती दुर्ग वॉज किल्ड कीर्तिवर्मन, ठीक है। तो वही दांती दुर्ग है ये, उसी ने राष्ट्रकूटा एम्पायर बाद में शुरू करा। ये याद रखना, फाउंडर कौन है राष्ट्रकूटा एम्पायर का? वो है दांती दुर्ग। और अदर फेमस है जो, वो है गोविंदाश्री और अमोघ वर्षा, ठीक है। ये इसके ना कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे, हम लोग क्या करते हैं सारे कि फाउंडर पूछते हैं, हम अमोघ वर्षा और गोविंदा लिख के आते हैं, ठीक है। गोविंदा और अमोघ वर्षा फाउंडर नहीं है, वो ग्रेट रूलर्स थे, और दांती दुर्ग रियल फाउंडर है। और कब शुरू किया था ये? 753 CE में, ठीक है। तो इसमें बस सारे इसमें यही बताया जाता है, तुमने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, उसमें भी सब में यही बताते हैं कि वो बहुत ग्रेट वॉरियर्स थे, आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर्स वगैरह थे। अब ये देखो इनके टाइटल्स, देखो टाइटल्स ज़रूर आते हैं, ठीक है। दे टुक अप द टाइटल्स लाइक चक्रवर्ती, महाराजा धीराज एंड परम भट्टक। अब देखो तुम्हें ना याद, अगर तुमने पिछली क्लास अच्छी तरह से पढ़ी हुई है तो तुम्हें ना ज़्यादा इसमें ना याद करने को मतलब ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चक्रवर्ती तो देखो किसी का सरनेम कई बार चक्रवर्ती होता है, तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है चक्रवर्ती तो उसका नाम चक्रवर्ती याद रखो, ठीक है। और महाराजा धीराज और परम भट्टक तो उन्हें भी दे रखा था, क्या कहते हैं, हर्षवर्धना को भी दे रखा था, यही सेम चीज़ है। तो ये याद रखना, ये भी ज़रूर आएगा, ठीक है, MCQs में आएगा ये। दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। ये मेंटेन ह्यूज आर्मीज, ये भी फीचर्स ऑफ राष्ट्रकूटास में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली लाइन है, दे फॉलो जैनिज्म, ठीक है। अब जो राष्ट्रकूटा है वो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को करते हैं फॉलो, ठीक है। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी ना हम जो आगे पढ़ेंगे ना उनमें पालाज में वो लोग ना बुद्धिज्म करते हैं फॉलो। तो इसमें ना पूछ लेते हैं MCQs में कि राष्ट्रकूटास क्या करते हैं और पालास क्या करते हैं। तो तुम्हें याद रखना है कि राष्ट्रकूटास का जैनिज्म एंड पालास का भी हम पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब पालास, very limited information is available about the history of Bengal for the period between the death of Harsha and the ascending of Palas, but it is well known that during this time Bengal faced a lot of infighting among the small kingdoms. The people of Bengal elected Gopala as their king to maintain peace or order. He set up an empire which ruled over for 400 years. His successor used Pala after their name, and hence their empire came to known as Pala dynasty. Dharampala was the greatest ruler of Pala dynasty. He set up a center for Buddhist education, which was known as Vikramshil Vihar. His son Devpala extended the Pala empire and also defeated the Huns. The end of this period ushered in the decline of Palas. The Pala rulers were the followers of Buddhism. Many scholars were sent to distant countries to spread Buddhism. They also gave generous grants to Brahmins to build temples. Palas was the great patrons of art and education. तो अब देखो सिंपल बात है, जब पालास थे बंगाल में, और बंगाल में उस टाइम पर मतलब जो कि है 750 से लेकर 1000 CE तक बहुत इनफाइटिंग रहती थी। तो ज़्यादा इतनी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है बंगाल के बारे में, पर जब बहुत इनफाइटिंग हो रही थी और लोगों को अपना एक लीडर चुनना था तो उन्होंने इलेक्ट करा गोपाला को, उस टाइम के गोपाला को, ठीक है। तो गोपाला ने बहुत बड़ा किंगडम बनाया, उन पे राज करा। अब जो उसके सक्सेसर्स आए मतलब डायनेस्टी में, जो उसका बेटा था, उसका बेटे का बेटा था, ऐसे उन्होंने अपने
मतलब अपने गोपाला को करने के लिए, मतलब रिस्पेक्ट करने के लिए या फिर डिवोट करने के लिए अपने नाम के पीछे पाला लगाना शुरू कर दिया। जैसे अब जो गोपाला का बेटा था, गोपाला का बेटा ही है ना, नहीं, जो गोपाला के बेटे के बारे में यहाँ पे दे रखे है, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, रात के 11 बज रहे हैं, मेरा दिमाग सटक गया लग रहा है। ठीक है, तो गोपाला के बारे में इधर क्या बोला गया है, तो उसने 400 ईयर्स तक, मतलब 400 ईयर्स जितना एक मतलब पूरा डायनेस्टी बनाई, उसका नाम था पाला डायनेस्टी। और वो उसके सक्सेसर क्यों पाला यूज़ करते थे उनके नाम के पीछे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि क्योंकि उनका फर्स्ट लीडर गोपाला था, तो इसलिए वो उसे डिवोट करने के लिए, उसे रिस्पेक्ट करने के लिए पाला यूज़ करते थे। ठीक है, अब जो आपका वो है जैसे ग्रेटेस्ट रूलर है, जैसे पिछले राष्ट्रकूटास में आपके ग्रेटेस्ट रूलर्स थे गोविंदा और अमोघ वर्षा। अब जो इसमें है, इसमें आपके ग्रेटेस्ट रूलर्स कौन है, धर्मपाला एंड देवपाला। अब जो धर्मपाला है, यह ज़रूर याद रखना ये वाली लाइन, धर्मपाला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। अब ये वाली लाइन, ठीक है, ही सेट अप अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वॉज नोन एज विक्रमशील विहार। ये आपको 100% आएगा ही आएगा, 95% आएगा ही आएगा MCQs में, कि धर्मपाला ने क्या बनवाया था, तो आपको बोलना है विक्रमशील विहार बनाया था। क्या है वो, बुद्धिस्ट एजुकेशन का सेंटर था। ठीक है, हिज सन देवपाला एक्सटेंडेड द पाला एम्पायर एंड ऑल्सो डिफेटेड द हंस। हु डिफेटेड द हंस, देवपाला। ठीक है, अब जो ये वाला पैराग्राफ है, The Pala rulers were the followers of Buddhism. Many scholars were sent to distant countries to spread Buddhism. ये पूरा पैराग्राफ आ जाता है आपका रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पालास में। ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बस लास्ट लाइन छोड़ के पूरा रिलीजियस बिलीफ्स पे 3 लाइन है। ठीक है, अब डू यू नो पढ़ लेते जल्दी से। वेस्ट बंगाल वॉज नोन एज गौड़ा एंड ईस्ट बंगाल एज बंगा। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रिवाइव ड्यूरिंग द पाला एम्पायर। ये आता है आपको क्वेश्चन कई बार। द फेमस नालंदा, मतलब जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे वापस रिवाइव कब किया गया था, पाला एम्पायर ने। और तुम्हें कुछ रिकॉल करने के लिए बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को बिहार में बनाया गया था हर्षवर्धना द्वारा, और विक्रमशील विहार भी बिहार में ही है। ठीक है, तो अगर मैप स्किल में आएगा तो बिहार लोकेट कर देना। ठीक है, अब प्रतिहारास, they are also called Gujara Pratiharas, probably because they originated from Gujarat. They ruled over Gujarat and southwestern Rajasthan. The founder of Pratihara Empire was Nagabhatta I. The greatest ruler of this dynasty was Mihir Bhoj. He conquered Kannauj around 836 CE. The continuous battles weakened the Pratihara Empire and it broke into a number of smaller kingdoms. The Pratiharas were great warriors. They fought many battles with the Palas and Rashtrakutas. The Pratiharas kings were also great patrons of art and literature. King Mihir Bhoj himself was a well-known scholar. Regional languages developed at a fast rate under Pratihara's rule. During this time, early forms of Marathi and Gujarati were spoken in western India. Bengali, Assamese and Oriya became popular in the eastern India. The beautiful temples of Khajuraho, Kanchipuram, Thanjavur, Bhubaneswar, Puri and Konark were built during the rule of Pratiharas. The art of miniature painting also started during this period. अब देखो, प्रतिहारास जो किंगडम था ना, उन्हें गुजारा प्रतिहारास भी कहते थे। अब क्यों, कई लोग पूछेंगे क्यों, और ये सवाल भी कई बार आते हैं पेपर में कि वाई प्रतिहारास वर ऑफन कॉल्ड एज गुजारा प्रतिहारास। तो तुम्हें सिंपल आंसर लिखना है 1 लाइन का, वो मतलब तुम देख लेना कितने मार्क्स है। अगर 1 मार्क्स का आया तो तुम्हें ये लिखना है बिकॉज दे ऑरिजिनेटेड फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, बस तुम्हें ये लिखना है। वरना अगर 2-3 मार्क्स का हो तो ऐसे रूल्ड ओवर गुजरात, मतलब पूरा लिख देना। ठीक है, अब इनका फाउंडर कौन था, नागाभट्टा I, ये याद रखना। और ग्रेटेस्ट रूलर इनका एक ही बताया गया है, मिहिर भोज। जैसे दूसरे के तो राष्ट्रकूटास के अमोघ वर्षा I और गोविंदा III थे, और ये अपने पालास के थे देवापाला एंड धर्मपाला, और इनका बस एक ही बताया गया है, मिहिर भोज। ही कंकर्ड कनौज अराउंड 836 CE। ये इसमें क्यों लिखा गया है ये मैं तुम्हें
अगला पैराग्राफ है ना, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा ये सिर्फ ये लाइन इसमें क्यों लिखी गई है और अचीवमेंट क्यों नहीं लिखी गई है, ठीक है। द कंटिन्यूस बैटल्स वीकेंड द प्रतिहारा एम्पायर एंड इट ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। प्रतिहारास जो थे ना, वो ना हमेशा फाइट में लगे रहते थे। उन्हें कोई मतलब हमेशा फाइट में ही थे वो। तो वो जब फाइट करोगे तो तुम्हारी आर्मी डिस्ट्रॉय होगी, तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉय होगा, तो कभी ना कभी तुम तो डिस्ट्रॉय होगे ना। वही सेम प्रतिहारास के साथ भी हुआ था। अब यही तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि प्रतिहारा सारे के सारे ग्रेट वॉरियर्स थे, पैटर्न्स ऑफ आर्ट थे, लिटरेचर वगैरह सब थे। अब ये देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास थे ना, एज ऑफ 3 एम्पायर, ये तीनों एक दूसरे के साथ वॉर करते रहते थे, कंटिन्यूसली वॉर करते रहते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हुई, ठीक है, उस टाइम पर, प्रतिहारास के टाइम पर। मराठी एंड गुजराती वर वेल स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया में बहुत सारी मराठी एंड गुजराती बोली जाती थी। पर जो मेन लैंग्वेजेस पॉपुलर हुई वो थी बंगाली, असमीज एंड ओरिया, ठीक है। वो ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में मराठी एंड गुजराती, ईस्टर्न इंडिया में बंगाली, असमीज एंड ओरिया, ठीक है। द ब्यूटिफुल टेम्पल्स, अब जो ये वाली लाइन है, द ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहारास। ये ज़रूर आता है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेम द टेम्पल्स मेड बाय द प्रतिहारा रूलर्स, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। अब एक बार ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल करने से पहले सर ये वाले डू यू नो पढ़ लेते हैं। 5 kingdoms which emerged from the Pratihara Empire were the Chauhans of Rajasthan, Gehrawals of Kannauj, Solankis of Gujarat, Paramras of Malwa and the Chandels of Bundelgarh, ठीक है। ये थे आपके 5 kingdoms which emerged from Pratihara Empire were, ठीक है। ये प्रतिहारा एम्पायर के अंदर से निकले थे, मतलब उसी के पार्ट थे, ठीक है। ये याद रखना। या तो तुम देखो, तुम्हें ना नोटबुक वगैरह में क्वेश्चन है कि नाम बताओ उनके, तो तुम तो लिख दोगे चौहान, गहरावल, सोलंकीज, परामरस एंड चंदेल्स। पर ये याद रखना, मुझे अभी भी याद है जब मैं पेपर दिया था ना, ये 2 मार्क्स का आया था और साथ में इनके जो एरियाज़ है ना वो भी पूछे गए थे, ठीक है। तो एरियाज़ ज़रूर याद रखना, जैसे ये चौहान्स के राजस्थान, गहरावल्स के कन्नौज, सोलंकीज का गुजरात, परामरस का मालवा एंड चंदेल्स का बुंदेलखंड, ठीक है। द ब्रेव प्रतिहारा स्टॉप द अरब इन्वेजन फॉर नियर बाय 300 ईयर्स। अब ये आता है आपके 1 वर्ड आंसर्स में, दैट हु स्टॉप द अरब इन्वेजन फॉर 300 ईयर्स, ऐसे, ठीक है। तो तुमने प्रतिहारा लिख देना है। तो अभी मेन पॉइंट याद कर लेते हैं शुरू के। 753 में हुआ था शुरुआत। फाउंडर था दांती दुर्ग, और फेमस कह रहा हूँ, ग्रेट रूलर्स थे आपके गोविंदा 3 और अमोघ वर्षा, और उनको टाइटल्स मिलते थे चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, परम भट्टक, ये सब। और ये मेन चीज़, ये जैनिज़्म को फॉलो करते थे। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे रॉकेट टेम्पल्स बनवाए थे। और अमोघ वर्षा ने भी खुद एक संस्कृत में लिखी थी बुक, अमोघ वर्षा ने कन्नड़ पोइट्री लिखी थी, कन्नड़ में, कावीर कमर का। ये ज़रूर आता है, ये भी याद रखना। फिर पालाज का फाउंडर था गोपाला, वो इलेक्ट हुआ था। और इनके आगे वाली जितने भी सक्सेसर्स थे सारे अपने नाम के पीछे पाला रखते थे। और जो धर्मपाला था और उसने विक्रमशील विहार बनाया था, और देवपाला ने हंस को हराया था। और ये लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। अब प्रतिहारास को गुजारा प्रतिहारास भी कहते थे। और इनके फाउंडर था नागाभट्टा 1। और इन्होंने और जो मेन लीडर कह रहा हूँ, जो ग्रेट रूलर था वो था मिहिर भोज, जिसने 836 CE में कन्नौज को कंकर कर लिया था, ठीक है। तो और ये और भी ये जो रीजनल लैंग्वेजेस फेमस हुई थी वेस्ट इंडिया में, वो है मराठी एंड गुजराती। और जो ईस्ट इंडिया में हुई थी वो है बंगाली, असमीज़ एंड ओरिया। और ये सारे
temples, the beautiful temples of Khajuraho, Kanchipuram, Thanjavur, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहारास, ये भी है। अब देखो सारा समराइज हो गया ये पूरा, ठीक है अभी तक का। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, ठीक है। अब मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म पहले समझा देता हूँ ये है क्या, नहीं पहले रीड कर लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ ये है क्या। कन्नौज वॉज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। Hence, the three kingdoms, the Rashtrakutas, the Pala, and the Pratihara, were continuously engaged in a struggle to possess Kannauj. Their struggle was for supremacy was known as tripartite struggle. Each of them succeeded in the occupying Kannauj in turns, as they were almost at par in military strength. But the continuous battles weakened them and finally led to the decline of all the three great powers. Their empire disintegrated into many small kingdoms within a period of 100 years. ठीक है, अब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था क्या। अब जो ये 750 CE से लेकर 1000 CE तक टाइम था, ये इसमें कनौज को था जो सिंबल ऑफ पावर, मतलब पावर के जो चिन्ह होता है, मतलब जो अगर जिस जगह पे आपने अगर कनकर कर लिया तो आपको हारने से कोई जीतने से कोई रोक नहीं सकता, उसे माना जाता था कनौज। तभी देखो इसमें लिखा गया है प्रतिहारास में कि मिहिरभोज कनकर्ड कनौज, ठीक है। तभी तो कनौज उस टाइम पर इतना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो अब इसको ना पाने के लिए 3 एम्पायर लगे हुए थे, राष्ट्रकूटास, पालास और प्रतिहारास। तो वो अब देखो, अब अगर कोई चीज़ को 3 लोग पाने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई तो होएगी, वैसी उनके बीच में हुई। अब वो जो लड़ाई थी वो कब स्ट्रगल में नहीं जो वो स्ट्रगल था वो कब लड़ाई में बदल गया पता नहीं चला। तो उस स्ट्रगल को कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। मतलब तीन महाराज्यों का स्ट्रगल कनौज को एक सिंबल ऑफ पावर को पाने के लिए। तो ऐसे वो सबने उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सबने एक एक करके कनौज को कनकर किया, क्योंकि वो मतलब एक जैसी थे मिलिट्री पावर में, स्ट्रेंथ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सब उनका सेम ही था। वो कंटिन्यूसली वॉर करते गए और एक टाइम ऐसा आया जब तुम वॉर करोगे, मैंने पहले भी अभी समझाया, जब तुम वॉर करोगे तब तुम्हारा मतलब ख़त्म तो होएगा ना तुम्हारा साम्राज्य, तुम धीरे धीरे डिक्लाइन करते जाओगे। तो यही इन तीनों एम्पायर के साथ भी हुआ, वो लोग डिक्लाइन करने लग गए, ठीक है। और विद इन 100 ईयर्स वो लोग मतलब पूरे ही डाउन हो गए, ठीक है। मतलब उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब देखो, जो तो मतलब ऐसे खुद बना के लिख सकते हैं, वो अपने पेपर में तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो तुम लिख सकते हो। अब जो ऐसे मतलब थोड़ा मतलब उनको हिंट चाहिए, तो ये ना जो पहली लाइन है ना, ये ज़रूर लिखना, कनौज वॉज द कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। इसके तुम्हें ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं कई बार, ठीक है। अब बाकी का राजपूत भी बहुत बड़ा है यार, राजपूत गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 में। तो अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो शेयर ज़रूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।